Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, doctor, as far as physiology of breathing is concerned, we have started with the different evolutionary pattern developed during evolution. Perfect. Usme gills, book gills, lungs, book lungs, cartineus, means through the skin surface, है ना? Through buccal cavity. So many methods or so many modes of breathing we learn. Perfect. After that, we switch to the anatomy and structural part, in which we have perfectly learned, studied the structure of lungs, the membrane, parietal pleura, visceral pleura, the fluid, T5 thoracic fifth vertebra, then cardiac notch, then primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, bronchioles. Even we studied the difference between bronchioles and tracheoles. We studied the difference between bronchioles and tracheoles. Tracheoles were present. Anyone? Anyone can tell me the difference between bronchioles and tracheoles? Anyone? Sir, may I? Yes, yes. Bronchioles are the air sac, while tracheoles are the fluid. Bronchioles are the air sac, where the tracheoles are the fluid filled sac. One more, Gayatri. You raised your hand. Yes, sir. So the bronchioles do not penetrate the whole body, but the tracheoles penetrate the whole body. Perfect. ब्रैंक्यूल्स बॉडी को पेनिट्रेट नहीं करता, ब्रैंक्यूल्स अपने पास लेता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर देता है, जबकि ट्रैक्यूल्स रीच टू एवरी ऑर्गन. वेरी गुड. वन मोर. Yes, sir. Bronchioles are present in humans, while tracheoles in the insect. स्पंदन जोर से. Sir, bronchioles are covered by thin lecithin, which reduces surface tension, so they always remains open. Whereas tracheoles, they are always remains closed. Perfect. Ishita, one more. Yes, sir. Bronchioles, they are mostly found in humans, but tracheoles, they are not found in humans. They are found in insects. परफेक्ट. वेरी नाइस. बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा. तो ये ब्रैंक्यूल्स और ट्रैक्यूल्स का डिफरेंस हम लोगों ने देखा, और सभी से यही एक्सपेक्टेशंस होगी कि आप सभी इस तरह से परफॉर्म करें ना. पर प्रोबेबली नेक्स्ट हम लोगों ने फिर स्ट्रक्चर देखा. स्ट्रक्चर के बाद फिर हम लोगों ने मैकेनिज्म देखी. मैकेनिज्म भी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया. कौन सी मसल्स एंटागोनिस्टिक है, कौन सी मसल्स पैरेलल मसल्स हैं, कैसे एब्डोमिनल और डायफ्राम एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं, कैसे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वर्क्स अपोजिट ईच अदर. एवरीथिंग वी लर्न perfectly. After that, we have learned the steps. Breathe in, then diffuse in, then transportation, then chloride shift. Am I right? Am I right, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Breathe in, then from lungs to blood diffusion, then transportation. O2 का दो तरीके से. Am I right? Yes, sir. What are those two methods? Samyak. What are those two methods by which oxygen transports? Samyak. Sir, HbO2 and dissolve in plasma. Perfect, Samyak. Very nice. बहुत बढ़िया. Ayush, what are the two pathways that CO2 transport? Three mode through which CO2 transports. Ayush. Through HCO3, HbCO2, and through dissolved one. Perfect. Percentage wise, Ayush, how much by bicarbonates? Sir, through HCO3 70%, through HbCO2 23%, and remaining through dissolved. Perfect. Very nice. बहुत बढ़िया. आयुष, तुम्हारा आवाज थोड़ा सा धीरे आ रहा है. आंसर इज करेक्ट, बट आवाज थोड़ा सा धीरे आ रहा है. एनीवेज, यस. उसके बाद मैंने आपको बताया क्लोराइड शिफ्ट. वहां क्लोराइड शिफ्ट होगी. क्लोराइड शिफ्ट यदि होती है तो वहां कौन सा इफेक्ट काम करेगा? बोर्स इफेक्ट और हेल्डेंस इफेक्ट. एनीवन? Heldens effect. Cohers effect. कुंजल मंत्री. Force effect. कुंजल, कौन सा इफेक्ट काम करेगा? बोर्स या हेल्डेंस? कुंजल. ओहो. Anyone who can explain, raise your hands. Mukti, बोलिए. Sir, force effect.
बोलिए कैसे? स्पंदन, आपने यू रेज योर हैंड. स्पंदन. Yes, sir. According to the Bohr's effect, if concentration of CO2 increases or if the pH decreases, then Hb and O2 will dissociate. And this phenomena is also seen near tissues. So, and chloride shift occurs near tissues. So here we can see Bohr's effect. परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास स्पंदन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, वेरी गुड. देन हमने वहां से फिर CO2 का एसोसिएशन पढ़ा. जब O2 से डिसोसिएट होता गया तो बाय डिफॉल्ट CO2 से एसोसिएट होना था. CO2 से एसोसिएट होता गया ट्रांसपोर्ट. CO2 के ट्रांसपोर्ट को हेल्डन ने प्रमोट किया और O2 के ट्रांसपोर्ट को बोहर ने प्रमोट किया था. एम आई राइट गायत्री? श्रेयस पैठणे, गितेश. O2 promotion, O2 transportation is promoted by Shreyas, Arpit, Jitesh. Bohr's effect by the Bohr's effect. And CO2 transportation. Heldens effect. बहुत बढ़िया. यानी ये सारी चीज समझ में आ गई दोस्तों. इतने मजे से तो कभी किसी नहीं समझोगे. I can openly challenge. Just discuss among your friends who are not proud Resonites. Just discuss with them. If they are answerable, then tell me कि yes sir, उनको भी पता है. In fact, किसी को चेक करना अपना उद्देश्य नहीं है. उन्हें भी समझाइए कि ये बोर्स इफेक्ट ऐसे काम करता है, हेल्डेंस इफेक्ट ऐसे काम करता है, O2 ट्रांसपोर्टेशन, एसोसिएशन, डिसोसिएशन ऐसे होता है. फीटल, प्रेग्नेंट मदर, एथलीट का ग्राफ राइट होगा, लेफ्ट होगा. एवरीथिंग वी आर नोइंग. एम आई राइट? इशिता गाडे, एबल वर्गीस, स्वानंदी. Yes, sir. Yes or no? कॉन्फिडेंट आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, परफेक्ट. ओमकार गुंजाल, डॉक्टर समझा बच्चे? Yes, sir. Understood. पलक संदान, प्राजक पाटिल, प्राप्ति, प्रसन्ना. Yes, sir. Yes, sir. अब उस ऑटो डिसोसिएशन कर्व के बाद काफी कुछ अपना हद तक काम हो चुका है चैप्टर का. अब हमें पढ़ना है फोर्थ पोजीशन. एंड द फोर्थ टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक Regulation. परफेक्ट. सेकंड एनाटॉमी. The third one was mechanism. And the fourth one is now the Regulation. हेडिंग डालते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. Visibility is clear. Yes, sir. Yes, sir. Regulation of breathing. The regulation overall can be studied in two parts. One is neural regulation. Digestion में भी हमने दो पढ़े थे. Anyone can tell me what these two Neural and points? hormonal. Neural and hormonal. Perfect. So this here we are studying neural regulation and chemical regulation. मेरे साथ ही लिखते चलेंगे. न्यूरल रेगुलेशन जो है वो बच्चों दो इसमें होगा. ब्रेन के दो पार्ट्स हैं. एक तो होगा मेडुला ऑब्लांगेटा and one is through pons, varoli. केमिकल जो होगा थ्रू न्यूमोटेक्सिक और केमिकल के लिए अपन कीमो सेंसिटिव एरिया CO2 का कीमो सेंसिटिव एरिया, इसको समझते हैं बाद. मेडुला के केस में दो ग्रुप बनाते हैं. वन इज DRG, वन इज VRG. D is dorsal respiratory group. Dorsal respiratory group. And VRG is what? Ventral respiratory group. Ventral respiratory group. Dorsal respiratory
DRG जो है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की जहां तक बात है, DRG causes inspiration or controls inspiration. DRG की बात करते हैं, cause control either inspiration or expiration, both. Controls both inspiration and expiration. Visibility is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then the pons varoli. Pons varoli has two centers, pneumotaxic and apneustic. Pneumotaxic or apneustic. Pneumotaxic and apneustic. ये DRG VRP पे क्वेश्चन आएगा बच्चों, है ना? नीट में आए नहीं आए, मेरे पेपर्स में आएगा DRG VRG, so ध्यान से पढ़िएगा. Pneumotaxic center, it controls the limit of inspiration. Apneustic, control the depth of inspiration. Controls the depth of inspiration. But ये apneustic determined by, नीट का सवाल है ये, determined by PCO. इसको समझ लेते. कीमोसेंसिटिव एरिया की एक लाइन आपके एनसीईआरटी में ही दी गई है. CO2 and chemosensitive area for H+. इस पूरे से मैंने आपको क्लियर कर दिया, समझते हैं. प्लीज नोट, देन विल grab the concept. Noted? Yes, sir. बच्चों सुनिए, मैंने आपको बताने कि हम जो ब्रीथ करते हैं, डेफिनेटली इट्स एन इनवॉलंटरी प्रोसेस. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. यू कैन नॉट होल्ड फॉर लॉन्गर. यस, फॉर टाइम बीइंग आई कैन होल्ड. जैसे प्राणायाम के दौरान सिखाया जाता है, योगाभ्यास के दौरान सिखाया जाता है, जस्ट इनहेल एंड जस्ट होल्ड इट ऑन. यस, आई कैन होल्ड इट, बट नॉट फॉर लॉन्गर टाइम, है ना? सो किसी प्रकार से जैसे ही आपने होल्ड करके ज्यादा देर रख लिया तो बाय डिफॉल्ट आपने एक्सेलेशन करना. यहां पर एक कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा नीट का. मैं जब इनहेल करता हूं तो व्हाट आई एम इनहेलिंग, व्हिच गैस आई एम इनहेलिंग डॉक्टर्स? Oxygen. Oxygen. What I am holding in my lungs? Both. Oxygen. नहीं, oxygen. What I am holding in my lungs while I am breathe in, what I am holding, that is oxygen. So what I am holding to diffuse into blood is oxygen. So what holds in blood to expelled out is carbon dioxide. Agree? Yes, sir. Exhalation के लिए मुझे होल्ड करने के बाद मुझे बस इतने सवाल का जवाब दीजिए. ब्रीथ इन और उसको होल्ड करने के बाद कौन सी गैस मुझे इंसिस्ट कर रही है कि मैं एक्सेल करूं? टेल मी. CO2. Carbon dioxide. That means my brain is more sensitive for what? CO2 के समय एक मिसकंसेप्शन ऐसा होता है, बच्चों को लगता है कि हम O2 के लिए ब्रेन सेंसिटिव है. Our chemosensitive area is for CO2 and H+, and increasing H+. Those who know pH
They can understand. Those who know pH, they can understand pH equals to minus log H plus. So increasing H plus, छोटा सा concept. Increasing H plus, overall pH decreases. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सामने माइनस लगा है, मतलब मैं माइनस की वैल्यू जितना बढ़ाता जाऊंगा ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी. यस और नो? sir. Yes, sir. -2 बड़ा है -4 से. सो जितना वैल्यू आप H प्लस का बढ़ाते जाएंगे ओवरऑल pH विल बी डिक्रीजिंग. यस और नो? Yes, Yes, sir. If overall pH is decreasing, it will be lead to acidic environment. Yes or no? Yes, sir. Yes. What is the Bohr and Eldon effect? If the environment is acidic, O2 will associate or will dissociate? Dissociate. Will dissociate. मतलब मेरे ब्रेन में एक ऐसा एरिया है जो एसिडिक एनवायरनमेंट को रीड कर रहा है, जो CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को रीड कर रहा है, ना कि O2. इसीलिए वी कैन नॉट होल्ड द ब्रीथ इन फॉर लॉन्गर टाइम, बिकॉज वो टिश्यू में इतना CO2 बन चुका है कि उसको ब्रेन रीड कर रहा है, एंड उस CO2 को रीड करने के बाद बाय डिफॉल्ट यू एक्सपेल्ड आउट. सो कीमोसेंसिटिव एरिया सेंसिटिव फॉर, और यही सवाल में बच्चे कच्चा खाते हैं, सेंसिटिव फॉर व्हाट? CO2 Carbon dioxide. and H plus, not the oxygen. मुद्दे की बात आती है न्यूरल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन, ये मैंने आपको बता दिया. न्यूरल रेगुलेशन की बात करूं, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स फेरोलाई दोनों ही जो है, मेडुला ऑब्लांगेटा बच्चों होता है बायोलॉजिकल सेंटर. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैब द कांसेप्ट. एंड दिस वन इज बायोकेमिकल सेंटर. One is biological and one is biochemical. What is the difference? दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट या थोरेसिक कैविटी एक्सपांड हो रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है, इंटरकॉस्टल मसल ऐसा हो रहा है, एब्डोमिनल ऐसा हो रहा है, all these are biological phenomena. All these are biological phenomena. So that is controlled by medulla. But HbO2 से एसोसिएट हो रहा है, CO2 से डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस बढ़ रहा है, H प्लस कम हो रहा है. All these are Biochemical phenomena. Chemical. Just make it sure कि both are controlling neural regulation for the breathing, but this controls biochemically and this controls Biologically. That means whatever the phenomena takes place in your body, in your muscles, in cells, in tissues, these all are biological. But whatever the phenomena is chemical, association, dissociation, H plus, acidity, alkalinity, CO2, O2, all these are Biochemical. Agree? That's why. Yes, sir. That's why what I wrote here, pneumotaxic center and apneustic center. Pneumotaxic center control the limit of inspiration. आप बहुत ज्यादा डीप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, एक लिमिट होगी, उसके बाद आप और खींचना भी चाहेंगे तो आप खींच ही नहीं पाएंगे, इनहेल ही नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि इतनी देर में जब आप इंस्पिरेशन कर रहे थे उधर टिश्यू में CO2 बन चुका था, और वो CO2 वापस आने के लिए वापस आना चाह रहा था, जिसके लिए O2 वहां डिलीवर किया जाना जरूरी था, तभी CO2 निकल पाएगा. अदरवाइज CO2 निकल नहीं पाएगा क्योंकि क्लोराइड शिफ्ट नहीं होगी. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. Yes or no? So you cannot inspire for long, even you cannot have expiration for long. But yes, whatever the amount, what science, yoga science says, whatever the amount of oxygen you inhaled, its double should be expelled out. Then only the lungs will be open completely and functional completely. तो यहाँ लिखा मैंने limit the inspiration, pneumotaxic center. और apneustic center, it controls the depth of inspiration. कितनी डेप्थ तक आप, how long you can inhale, कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा एंड होल्ड करना पड़ेगा, और ज्यादा होल्ड कर दी तो एक्सपेल भी करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट मींस ऑल दे वर्क टुगेदर. But as a question, as a concept, we are dealing in a two different way: neural regulation, chemical regulation. Chemical regulation, chemosensitive for CO2 and H. Neural regulation, medulla and pons. Pons is, it controls the depth and limit of inspiration. And medulla has DRG and VRG. One is dorsal respiratory group and one is ventral respiratory group. So dorsal controls inspiration and ventral control both inspiration and expiration. अभी dorsal respiratory और ventral.
आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट. This part is what? Ventral or dorsal? Ventral. Ventral. This part is what? Dorsal. ऐसे उस स्ट्रक्चर का डॉर्सल और वेंट्रल. अंडरस्टूड डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. I'm going to share the image of this, and this is the one question that I like most to place in my test papers if I'm going to prepare the test. Just when I'm sharing the image. Okay. आगे बढ़ते हैं बच्चों. So now switching to the last part. What was that? What was that? Disorders. Disorders. Disorders तो मैं तो क्या ही बताऊंगा, लेकिन ठीक है, कुछ पॉइंट्स तो मैं लिखवा दूं, आपको लिखवा दूं, the words लिखवा दूं. That's all your part, ना? Disorders of breathing. What is first given in NCERT? Asthma. Anyone who can explain what is asthma? Inadequate supply of oxygen. Inflammation of bronchi and bronchioles, जिसकी वजह से difficulty in breathing. What is emphysema? What is emphysema? Damage of alveolar walls. Damage of alveolar wall. Perfect. Damage of alveolar wall. Alveolar walls. Okay. What is third one given in NCERT? ORD. That is what? Occupational Respiratory disorder. जो ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करते हो जहां स्टोन ब्रेकिंग होती हो, ग्राइंडिंग होती हो, बहुत सारा डस्ट निकलता हो, है ना, वहां पर ये समस्या ज्यादा हो जाती है. एंड इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन लीड टू फाइब्रोसिस. इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, और इसकी वजह से जो दूसरी बीमारी हो जाती है दैट इज फाइब्रोसिस. Any more is given? No, sir. No, sir. हम लोग लिखेंगे because we are Loud resonance. yes, we need to understand. हाँ बोलो, कोई बोला कुछ? Sir, what is ARD? ORD की ARD? ARD. ARD कहाँ पढ़ लिया तूने बेटा? सर कहाँ तो भी सुना था, acute respiratory disorder या disease. हाँ तो acute तो बेटा वो स्टेट है, उसमें से किसी की भी एस्थमेटिक अटैक आया, प्रोफाइलेक्टिक शॉक हुआ, तो भी तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो ही जाएगा ना. Okay sir. एक्यूट और क्रोनिक उसकी स्टेट होती है दोस्त. ओके? Yes sir. ओके, परफेक्ट. और मैं कुछ लिखवाऊंगा आपको, कह तो दिया प्राउड रेजोनाइट है, तो कुछ तो थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा अपने को. नो प्रॉब्लम. कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डिजीज हैं जो लिखे जाने जरूरी हैं, वो हम लिख लेते हैं. लाइक हाइपोक्सिया. एनीवन कैन टेल मी?
The hypoxia means, like, for example, if a person is in water for a long time, then oxygen is not delivered. Efficiency of O2 to tissues. Perfect, Gayatri madam. Okay, and what is coughing? What is coughing? सोचिए, technical word. What is sneezing? कफ होना, स्नीज होना. एक और बड़ा अभी हो रहा होगा आपके साथ. हो रहा है क्या किसी को yawning? No, अरे sir. हो रहा है. No, sir. No, sir. One is hiccups. Sir, हाँ. so can we add pneumonia? Pneumonia is, madam, infectious disease. Gayatri, pneumonia we can write, but pneumonia किसी infectious agent की वजह से हो रहा है ना. हम physiological disorder की बात कर रहे हैं. Gayatri. So means it should be caused by some defect in the structure itself. हाँ, ये physiological disorder है ना दोस्त. तो physiological disorder मतलब गायत्री जितना भी physiological means होंगे उसकी वजह से कर रहे हैं ना अपन. Is it? Yes, sir. So no external bacteria, virus, anything. Yes. किसी भी इसमें देख लीजिए आपको नहीं मिलेगा. Eupnea. Hyperapnea. Tachypnea. Apnea. Dyspnea. Sir, what is the 10th one? Zero. Eupnea. 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 हाइपरकैप्निया मतलब भैया हमें पता होने चाहिए, बस पूछा जाए नहीं पूछा जाए अलग बात है. हाइपोकैप्निया. हाइपोकैप्निया. पास्चर इफेक्ट. Schneiderian membrane. सब चीजें हमें पता होनी चाहिए. Schneiderian membrane के बाद hay fever. Decompression sickness. और mountain sickness. प्लीज नोट, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपको. Noted, doctors? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. एक एक वर्ड क्लियर करते हैं. कफिंग. कफिंग में सिंपल से वर्ड हमें लिखने हैं. फोर्सिबल एक्सपीरेशन. कफिंग. फोर्सिबल एक्सपीरेशन
forcible expiration due to closure of glottis. Due to closure of glottis. आया कुछ समझ में? अब फील भी किया होगा तो समझ में आया होगा। कफ जब होता है, कफ जब हम निकालते हैं तो ग्लॉटिस वाला रास्ता बंद हो गया है और इसकी वजह से फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? कफिंग। ओके? यस। Sneezing, forceful expiration and spasmodic contraction. Forceful expiration from nose and mouth together. छींक, छींक समझ में आई? नाक से भी और माउथ से भी। अग्री? यस सर। Yawning. Yawning is prolonged inspiration. Prolonged inspiration. मुंह खोल के यानी थोड़ा सा लंबा इंस्पिरेशन हम लोगों ने करते हैं, दैट इज प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन थ्रू माउथ। हाँ, ये लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थ्रू माउथ, नॉट थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से तो प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन अच्छी बात है, योगाभ्यास है। हिकअप्स, शार्प इंस्पिरेटरी साउंड due to closure of glottis. Sharp inspiratory sound due to closure of glottis. उचकी जिसको अपन कहते हैं, हिचकी, हिचकी। Snoring, rough rattling inspiratory noise. रफ घसीटता हुआ आवाज निकलता है ना, रफ रैटलिंग इंस्पिरेटरी नॉइस। इंस्पिरेटरी नॉइस and it is due to partial blockage of respiratory tract. Partial blockage of respiratory tract. ऊपर का सिस्टम यदि बंद है तो कहीं ना कहीं रैपलिंग साउंड के साथ एक इंस्पिरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड स्नोरिंग। यूपनिया, यूपनिया इज व्हाट? नॉर्मल ब्रीथ। यूपनिया इज नॉर्मल ब्रीथ। हाइपरअपनिया, कुछ लॉजिक लगा सकते हैं? State of Fast breathing. Fast breathing. Breathing rate. हाई Fast. ब्रीदिंग। Fast breathing. फास्ट मतलब हायर ब्रीदिंग रेट, है ना? टैकी जहां भी वर्ड आएगा, टैकी मतलब हायर, और यहीं पर ब्रैडी आ जाता तो ब्रैडी Lower. लो ब्रीदिंग। Slower. यस, मतलब बच्चों हाइपरअपनिया यानी टैकीपनिया और ब्रैडीपनिया मतलब हाइपोपनिया। अंडरस्टूड? Yes sir. अंडरस्टूड? Yes sir. हाइपरअपनिया मतलब टैकी और हाइपोपनिया मतलब ब्रैडी। डन? Excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज। Sir, if eupnea is normal breath, then how come it is a disorder? हाँ, ये भी बात है, वो टर्मिनोलॉजी। ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक है, सही पकड़े हैं आप गायत्री मैडम। ये मैंने एक वर्ड लिखा दिया, बहुत सारे वर्ड लिख रहे थे ना हम लोग। यूपनिया नॉर्मल ब्रीदिंग, हाइपरअपनिया और हाइपोपनिया इज डिसऑर्डर। गायत्री, वेरी गुड। अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you, sir. अब यदि यूपनिया नॉर्मल है, हाइपरअपनिया ज्यादा है, हाइपोपनिया कम है, तो एपनिया क्या होगा? stoppage in breathing, No breath. Perfect. कौन बोला? स्पंदन। वेरी गुड, स्टॉपिंग, है ना? तो फिर डिस्पनिया क्या होगा? Unstoppable. Shortness of breath.
अरे नहीं भाई, पेनफुल, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। अरे डिस्प्रीम याद आया? डिस मतलब अनकंफर्टेबल, ग्रीक भाषा के शब्द हैं सर। डिस्पनिया मतलब पेनफुल थोड़ा सा, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. तो हाइपरकैप्निया क्या होगा? इंक्रीज्ड CO2। तो हाइपोपनिया क्या होगा? Decreased CO2. Sir, but why does dyspnea takes place painful? फिर से Sir, but why is that painful breathing? नहीं समझा। why there is Painful breathing. पेनफुल मतलब डिफिकल्ट हो रहा है ना। ब्रीद आउट ब्रीद इन, जब नाक कंजेशन हो जाता है, कंजेशन किसी भी वजह से हो, उस कंजेशन की वजह से आप सांस नहीं ले पाते हैं तो तकलीफ होती है ना, नाक बंद हो जाती है, घबराहट होने लगती है। इज इट? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए, श्नीडेरियन मेम्ब्रेन, सिर्फ वर्ड मैंने लिखा है श्नीडेरियन मेम्ब्रेन। वो क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होती है, इसलिए लिखा है। और इस पर पता नहीं क्यों सवाल आता है बार बार। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी मतलब पता है आपको? ऑल्फैक्टरी Ear. अरे ऑल्फैक्टरी Related to smelling. responsible for smell. योर, हाँ यस, सेंस ऑफ स्मेल होता है। ब्रेन का एक पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब दैट हैव द सेंस ऑफ स्मेल। उसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को ये पूछा गया 2-3 बार आया है, इसलिए मैंने लिखा दिया दैट इज श्नीडेरियन मेम्ब्रेन। अब चीजें बची, पास्चर इफेक्ट, हे फीवर, प्लीज बी ऑन म्यूट। चलिए पास्चर इफेक्ट की बात करते हैं। छोटा सा स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, है ना? पास्चर इफेक्ट, if O2 increases in anaerobic environment, then therefore glucose consumption decreases. Glucose consumption decreases. मैं बोल रहा हूं, देखिए थोड़ा सा छोटा लिखा है। If O2, पास्चर इफेक्ट क्या बता रहा हूं आपको, लिख लीजिए पहले फिर समझाता हूं। If O2 increases in anaerobic environment, किसी anaerobic environment में यदि आपने O2 दे दिया तो ग्लूकोज का कंजप्शन कम हो जाता। पहले नोट कीजिए फिर समझा। If O2 increases in anaerobic conditions, then glucose consumption decreases. Noted? Yes, sir. अब उसका कंसेप्ट होती, एक ऐसी सेल है जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है। यदि एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है मतलब कंप्लीट बर्निंग हो रहा है फ्यूल। अपनी बॉडी के 3 ही फ्यूल है, कौन कौन से? यस, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। डॉक्टर जब भी इसमें से बर्न होता है तो एफिशिएंट बर्न होता है पहले कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट बर्न होकर आपको एटीपी देता है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes. यानी आपको एनर्जी मिलती है जब वो फ्यूल बर्न होता है। अब वहां मैंने आपसे कह दिया कि इनिशियली ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल सबने पढ़ा है, एम आई राइट? सुना है? Yes. Yes. जिन्होंने भी सुना उनको पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एनारोबिक कंडीशंस में होता है जिसमें एनर्जी हमें कम मिलती है। जाहिर सी बात है यार, एक गैस सिलेंडर को, बर्नर को जलाओ और खाना पकाओ तो जल्दी पकेगा बजाय चूल्हे की, क्योंकि चूल्हे में और स्टोव्स में एनारोबिक कंडीशन ज्यादा होती है। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होता है, एरोबिक की एनारोबिक? एरोबिक में आपको O2 ज्यादा लगती है लेकिन एटीपी ज्यादा मिलने। यस और नो? Yes. अब मैंने आपसे कह दिया कि यदि आपने कहीं पर O2 सप्लाई कर दी, यानी O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, जाहिर सी बात है O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से एटीपी बढ़ जाएगा। यस और नो? Yes. तो भैया फिर फ्यूल की जरूरत कहां बचेगी? जब एटीपी मिल ही रहा है तो फ्यूल कम लगेगा ना। यस और नो? Yes, sir. Simple सा concept, that is nothing other than posture effect.
If O2 increases in anaerobic conditions, then glucose consumption decreases. Perfect? Yes, sir. Yes, sir. अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हे फीवर भी कुछ नहीं, हे फीवर भी लिखवा देता हूं वहां पर. Acute inflammation of mucus. Acute inflammation of mucus. Acute inflammation of mucus. ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई आजकल, हे फीवर. वैसे इसको भी इसमें नहीं डालना चाहिए था, जैसे गायत्री ने पूछा था. पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, डू यू नो? Yes, sir. फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होता है वो बड़ा हाईली एलर्जिक होता है. एलर्जन, बहुत बड़ा एलर्जन, वो बहुत बड़ा एलर्जन है. उसको इनहेल विनहेल हो जाए तो बहुत तेजी से छींक आती है और कंटिन्यूस पानी बहने लगता है. एक बार नाक को धक्का लग गया तो कंटिन्यूस में पानी बहने लगता है. दैट complete irritation of that mucous membrane due to any agent, biological or non-biological. When mucus stop working, it secretes fluid-like substance, then it is nothing other than what? Understood? Yes, sir. Acute inflammation of mucus due to pollen. ड्यू टू पॉलन. बेसिकली वो पॉलन से होता है, बाकी और भी कोई एजेंट हो सकता है, लेकिन एलर्जन सबसे बड़ा यही. अब ये सारा मिटाऊं तो मैं दो चीजों पर आऊं, डिकम्प्रेशन सिकनेस और माउंटेन सिकनेस. बहुत भारी कंसेप्ट है. ये क्लियर हो दोस्तों तो मैं आगे बढ़ू. बोलो. Sir, I have a doubt. हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए. So in the pasture effect, O2 is increasing in anaerobic environment and glucose consumption is decreasing. So the Yes. organisms which are there in the anaerobic environment, they are not anaerobic. They are aerobic organisms who are getting less oxygen, like that. No, 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 no. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. The organisms which are aerobic in nature, Gayatri, the organisms which are aerobic in nature, they are taking sufficient oxygen and producing ATP. But those who are anaerobic, they are not at all receiving oxygen. But उन्हें यदि आपने ऑक्सीजन दे दिया तो उनका एनर्जी स्टोर हो जाएगा ना, उनका फ्यूल बच जाएगा, कंजर्व हो जाएगा ना. What do you think? So means they are anaerobic organisms who can respire aerobically if O2 is available. There are two types of organisms, my dear. One is facultative anaerobe and is obligate anaerobe. Obligate anaerobe, those who survive only in anaerobic conditions. If you provide them oxygen, they will die. Gayatri. And one is facultative anaerobe. They are basically anaerobe, but optional, they can working in aerobic conditions. Understood? So here we have those facultative anaerobe. Zor se, zor se. Sir, so here in this experiment, like we have facultative anaerobe. Perfect. Because if they are obligatory anaerobe, then not at Then all they will die. survive if you provide them oxygen. Understood? Yes, sir. Thank you, sir. Perfect. I hope I shared the image. Let me check. Okay. बच्चों, that's all. ये सब लर्न करने वाला आपका पार्ट. ये डन है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Most two important concepts are decompression sickness and mountain sickness. Let me explain. How many of you are interested in R.K. Kalani Junior College? Raise your hands. Raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बच्चों थोड़ा सा देखिए, मेरे को थोड़ा चैलेंज हो रहा है. मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे? 7, 8. Why I am preferring this? Because अब उधर की सीट्स फुल होती जा रही हैं ग्लोबल की, तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग फंस जाएं और कहीं दूर का कॉलेज लेना पड़ जाए. फिर ग्लोबल इज फाइन, उससे एसोसिएशन है, वी आर वेल अवेयर विद देयर एक्टिविटीज, नो प्रॉब्लम एट ऑल यू विल फेसिंग. बट इफ कालानी की सीट्स भर गई, कालानी में सीट्स लिमिटेड है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल
एंड टू अटेंड टुडे सेशन आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि कल भी मैडम का फोन आया था कि सर मेरे पास फिर सीट्स खत्म हो जाएंगे तो मुझे मत बोलिएगा, दे हैव वेरी लिमिटेड सीट्स। सो मैं प्रेफर करूंगा कि यदि हो चुका है एडमिशन तो ठीक, अदरवाइज यू शुड गो अहेड विद आरके कालानी एंड टेक द एडमिशन, सो दैट बाकी दूसरा फिर मेरा बॉदरेशन नहीं बचेगा, क्योंकि बाइफोकल सब्जेक्ट यूजुअली मैथ्स वाले लेते हैं बच्चे। तो जिनको बाइफोकल लेना था वो ले चुके ग्लोबल में, जिनको वैसे भी लेना था वो भी ले चुके, इट्स अ गुड ऑप्शन। बट स्टिल आई सजेस्ट जिन्होंने नहीं लिया है वो जहां भी लेना है, हालांकि या ग्लोबल, बट दे शुड टेक द एडमिशन, कंफर्म द सीट्स, सो दैट वी विल बी फ्री कि हाँ आप लोगों का 11th तक तकलीफ में नहीं आएगा। सो कन्वे माय मैसेज टू योर पेरेंट्स एंड गो अहेड विद दिस। एनीवेज, मैंने 2 कंसेप्ट बच्चे आपको बताने हैं। वन इज व्हाट? Decompression sickness. देखिए, पहले कंसेप्ट समझते हैं। डिकम्प्रेशन सिकनेस क्या होता है बच्चों? जब डाइवर डाइव लगाता है, कोई डाइवर जो पानी में डाइव लगा रहा है, क्या कभी देखा आपने ऐसा डाइव लगाता है या तिरछा डाइव लगाता है? Slanting position. Slanting position. The reason is, बच्चों जैसे जैसे आप अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जा रहे होते हैं, अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जाते समय जब वाटर का प्रेशर आपके लंग्स पर आता है तो आपको घबराहट क्यों होने लगती है वो मैं बता रहा हूं। क्योंकि विद द इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग डेप्थ, with the increasing depth, since nitrogen is more, availability of nitrogen is more over there than the oxygen, क्योंकि वो तो बाइंडेड फॉर्म में कहीं पड़ा हो, तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का प्रेशर अधिक होने से नाइट्रोजन ज्यादा तेजी से डिफ्यूज हो। रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, with the increasing depth, increasing depth, therefore pressure what? Increase or decrease? Increase. Pressure increase. एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। परफेक्ट। और यहां पर जैसे वो इंक्रीज होता है, therefore collapsing or collapse of lungs increases। ऐसा हो सकता है, am I right? भाई प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स में प्रेशर आएगा तो कोलैप्स होने का नंबर बढ़ जाएगा ना, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए आप कोशिश क्या करते हो, therefore you try to increase breathing, yes or no? Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes. इसकी वजह से क्या होगा, अब वहां पर अवेलेबिलिटी, since N2 is available more, therefore it diffuses into lungs faster than O2. Agree? Agree? बट अंडर वाटर हम ब्रीथ नहीं करते हैं ना। अंडर वाटर ब्रीथ नहीं कर सकते, वही तो मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि अब आप ले नहीं पा रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही ना आपको, फ्री ऑक्सीजन। आप बाहर आकर क्यों कर पाते हो? बाहर आकर क्यों कर पाते हो? क्योंकि ऑक्सीजन आपको मिल जाती है, am I right? यस Yes, सर। sir. ओंकार। और वहां जाओगे तो अवेलेबिलिटी जिसकी होगी वो अंदर चली, बाय डिफॉल्ट चली जाएगी ना, ओंकार। यस सर, अंडरस्टूड सर। परफेक्ट। अब उसकी वजह से क्या हुआ, चूंकि उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन ज्यादा जाने लगी, जब नाइट्रोजन ज्यादा जाने लगी तो नाइट्रोजन का टेंशन ज्यादा अफेक्ट होने लगा, और नाइट्रोजन affects the body badly। अब कैसे बैडली अफेक्ट करने लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिजीनेस फील करने लगेंगे, वर्क कैपेसिटी कम होने लगेगी, हमें डिजीनेस आने लगेगा, हम थोड़ा सा ड्रॉसी फील करने लगेंगे। ये सब होगा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जगह कौन चला गया? नाइट्रोजन। अग्री? स्वराज, अर्पित, गितेश, श्रेयस, अग्री? Yes, sir. नचिकेत इसी में है क्या? नचिकेत, श्रेया,
सायन दरबार, अंडरस्टूड बेटा? यस सर। सायन आपके सारे डाउट्स अभी पूछ लेंगे आप, है ना? यस सर। ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम becomes severe if diver tries to come try to come up rapidly. उसको लग रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है, वो सीधा निकलने की कोशिश करने लगा। अब जैसे ही सीधा निकलने की कोशिश करने लगा, पूरा खेल खत्म, क्योंकि जितनी तेजी से वो ऊपर आ रहा था उतनी तेजी से नाइट्रोजन का प्रेशर कम होता जाएगा। Am I right? Yes. Am I right? Yes, sir. जितनी तेजी से नाइट्रोजन का प्रेशर कम होने लगेगा, लंग्स से एयर निकलने लगेगी। Am I right? Yes. और जितनी तेजी से लंग्स से एयर निकल जाएगी, नहीं कोलैप्स होने वाले लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. रैपिडली, सो रैपिडली ऊपर आने से क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप यदि अपन लिखें तो rapid fall in pressure of nitrogen, rapid fall in pressure, nitrogen comes out of lungs and diffuses rapidly into blood, forms gas bubbles. बॉडी फ्लूइड में गैस बबल्स बनने लगेंगे और वो बबल्स क्या करेंगे, में ब्लॉक पल्मोनरी वेसल्स, और जिसकी वजह से शॉर्टनेस इन ब्रीथ may lead to decompression sickness. देखिए बच्चों, नहीं समझ में आया एक बार फिर सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बोलिए कि सर नहीं समझ में आया। Doctors understood? Doctors understood बेटा? Yes, sir. Repeating my statement, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, लंग्स के कोलैप्स होने की संभावना बढ़ती जाएगी। हम ब्रीथ करना भी चाहेंगे, उसको बचाना भी चाहेंगे, तो वह नाइट्रोजन ज्यादा अवेलेबल है जो ब्लड में और लंग्स में ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होगी बजाय किसी और गैस के। उसके जाने से डिजीनेस और ड्रॉसी फील करने लगते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। फिर भी हम बचने के लिए जब रैपिडली सीधे ऊपर आने लगते हैं तो तकलीफ है। क्यों? क्योंकि ये एकदम से प्रेशर फॉल होता है। यदि तेजी से ऊपर आएंगे तो प्रेशर एकदम से कम होता है और वो वहां तेजी से निकलकर ब्लड में गैस बबल के फॉर्म में निकल जाएगी जो पल्मोनरी वेसल को ब्लॉक कर सकती है। यदि पल्मोनरी वेसल को ब्लॉक कर दिया तो लंग सप्लाई ही क्या करेगा, आपको शॉर्टनेस इन ब्रीथ होने लगेगा और दैट इज कॉल्ड एज डिकम्प्रेशन सिकनेस, जिसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है, जो पानी में डूबने वाले व्यक्ति की हो जाती है। नोटेड डॉक्टर्स? Yes. Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा, बोलो, कौन बोला? Sir, प्राप्ति. हाँ प्राप्ति बोलो। सर ये डिकम्प्रेशन सिकनेस सिर्फ यही कंडीशन से होती है क्या, मीन्स डेप्थ
इंक्रीज होने से? हाँ, डेप्थ इंक्रीज होने से ये कंडीशन अराइज होती है, लेकिन उससे ज्यादा सीवियर डिकम्प्रेशन सिकनेस, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, डिकम्प्रेशन सिकनेस नहीं हो रहा है, ये तो ड्रॉजीनेस फील हो रहा है, नो डाउट, ये डिकम्प्रेशन सिकनेस नहीं, ये डिजीनेस हो रहा है, क्योंकि आप डेप्थ के साथ साथ हो रहे हैं। तकलीफ या डिकम्प्रेशन सिकनेस तब होता है जब आप क्या करते हैं, तेजी से ऊपर आने लगे। आप सोचिए ना, जब एरोप्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ करता है, तो ये ऐसे क्यों नहीं टेक ऑफ करता, ये ऐसा ही क्यों करता है, या लैंड करते समय ऐसा ही क्यों करता है? द रीजन, एकदम से जिस प्रेशर से आप नीचे आ रहे हैं, यदि आप सीधे नीचे आ जाएं तो डिकम्प्रेशन सिकनेस हो। ये सिर्फ पानी की ही बात नहीं, ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। प्राप्ति, प्राप्ति, Yes, sir. अंडरस्टूड? Excuse me, sir. Yes, Yes, excuse. sir. Sir, means in the water, but if it is there, then how come N2 is there in the water? Means before dying of decompression sickness, that person will die, water will go inside the lungs. Yes, before decompression sickness, if the person is dying, definitely it is because of that drowsiness. वो डूबने से मर रहा है, but diver डूबेगा तो नहीं, diver will dive and will try to come up. So यहाँ पर if the person is dying, definitely it is not because of decompression sickness. It is just because of that dizziness and the gases diffusing into the blood, which makes it dizzy, drowsy, और फिर वो वहीं पर लुस्ट पड़ जाएगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगी, मसल्स मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि मसल्स को muscles do require oxygen for ATP. Gayatri, yes or no? Yes, sir. So he or she will be unable to move the arms and legs. Gayatri. Yes, sir. Suhani, Shajed, Tanmay, Tanvesh, Yes, sir. Utkarsha, Vaishnavi, बोलिए, understood? Sir. हाँ बोलिए. Yes, sir. Sir, this takes place only in divers. कौन पूछा? Sir, कौन पूछा? Aditi. अदिति. नहीं, डाइवर के केस में बता रहा हूँ, डाइवर क्या गलती करते हैं, मतलब कर सकते हैं, कोई नया सीख रहा होगा तो क्या गलती करेगा, अदरवाइज डाइवर इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा. अदिति. Okay. चलिए. Sir, decompression is shortness in breath. Just. डिकम्प्रेशन मतलब जो कंप्रेस हुआ था उसका डिकम्प्रेशन बड़ा तेजी से हो गया तो प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेसल्स में ब्लॉकेज आ गया. अब किसी, आप सोचो ना, किसी ट्यूब में पानी सप्लाई और बीच में आपने एक एयर बबल छोड़ दिया, पानी आएगा क्या आगे? No, sir. Because that air bubble will block. Mridula, Ishan, Aisha, understood? Yes, sir. Yes. Excuse me, sir. Yes, excused. Sir, so the N2 is available more. It is in the air which the diver is breathing and then diving in the water. Repeat your statement. Sir, means the N2 is more in the air which the diver is breathing. He is holding the breath and then he is going inside the water like that. No. Just one statement is there. Nitrogen diffuses rapidly under pressure. Gayatri. Nitrogen diffuses rapidly under pressure. Gayatri. Yes, sir, now understood. Means in the air there is 70% nitrogen. So when he is taking the nitrogen, normally nothing will happen. But inside the water, pressure will increase on the lungs and the nitrogen will start diffusing. That's why what we wrote here, pressure increases. Is it? Yes, sir. So this situation will happen whenever there is excessive pressure. Yes, 100%. When the lungs are surrounded by extreme pressure, that condition may happen. Understood? Yes, Understood? sir. So, yes, sir. So is this also the reason why there is a record like after this depth you cannot dive in the ocean like that? Pardon, not getting. Sir, is it because of this decompression sickness and overall pressure of water on the body that there is a limit that after some say 1,000 meters or something the person will dive, they continue to dive more and more deeper in the ocean? Yes, they try to, but not directly, in a slanting mode. Agree?
Yes, sir, but there is a limit now. Like if a person dives in the ocean more than the at limit, then they will die. हाँ ना, डेफिनेटली ना, बिकॉज क्योंकि उससे ज्यादा भी बच्चा होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर he or she has to die. Water pressure in gallons, it is much more pressure than anywhere else in nature. The pressure of gallons of water is beyond imagination. That pressure creates the lungs extra pressurized and that may collapse 101%. इसीलिए तो अब ये क्वेश्चन आया था मुक्ति का शायद, जो रॉकेट में जाते हैं, those astronauts carry oxygen cylinder and oxygen mask. Mukti, is this the question? Sir, I had not thought. Sir, it was mine. Gayatri, you understood the concept? Yes, sir. Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, why don't a person traveling in helicopter get compression sickness? उसको भी हो सकता है ना, उसको भी हो सकता है दोस्त. इसीलिए अरे भाई हेलीकॉप्टर में और इसमें एरोप्लेन में बैठा है तो सीधे थोड़ी ना ऊपर जाएगा वेदांत. यस सर. लैंडिंग करते समय, टेक ऑफ करते समय स्लैंटिंग पोजीशन में करेगा ना डॉक्टर, डायरेक्ट थोड़ी ना करेगा. अंडरस्टूड? यस सर. वन मोर Yes, sir. माउंटेन सिकनेस. एक डेप्थ की बात थी और एक हाइट की बात है, एल्टीट्यूड की. माउंटेन सिकनेस, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, वो अपन डेप्थ की बात कर रहे थे, दैट इज हाइट. देयरफॉर व्हाट डू यू थिंक, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी मोर और लेस? Less. Therefore breathing will increase or decrease? Decrease. Increasing. O2 कम मिलती है, मतलब दम घुट रहा है, मतलब आप क्या करने लगते हैं? अग्री? आपने लगता है. ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाए, और ब्रीदिंग इंक्रीज होने के साथ साथ जैसी ब्रीदिंग इंक्रीज होने लगती है तो यू स्टार्ट टायर्डनेस. अग्री? और ये सीकनेस भी तब ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है. It increases more and becomes severe if HB and O2 affinity increases. This is mountain sickness. टायर्डनेस आने लगता है, नौशिया होने लगता है, नौशिया के बाद टायर्डनेस है, नौशिया है, फटिग फील करने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है. ये सब किसके पार्ट है? डिकम्प्रेशन नहीं, माउंटेन सिकनेस. और ये ज्यादा सीवियर हो जाता है यदि HB और O2 की अफिनिटी इंक्रीज हो जाए. तो उस कंडीशन में द सॉल्यूशन इज गायत्री बताया था एक दिन, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? HB and O2 affinity should be decreases, therefore O2 can be delivered to tissues. O2 can be delivered to tissues to prevent it from hypoxia. बात को समझिएगा, देखिए क्या कह रहा हूं. और एक सॉल्यूशन क्या है? एंड नंबर ऑफ आरबीसी शुड बी इंक्रीजेस. ये कब हो सकता है? एडाप्टेशन से. समझिए क्या कह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ more height, O2 decreases, so breathing will increase. Breathing increase होती है तो आप जल्दी थकते हैं, जल्दी दमते हैं, फटिग होने लगता है, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है. All these are the characters of what? Mountain sickness. Prapti, did you understand? Yes, sir. Priya, Sayan, Shweta, Swani, Yes, sir. Rugula. Yes, So sir. tiredness increases, nausea Yes, sir. increases, fatigue increases, bleeding increases. नाक वाक से खून निकलने लगता है. जैसे जैसे हाइट पर जाने लगते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने लगे तो खून निकलने लगता है. क्यों?
क्योंकि क्या हो रहा है ना, प्रेशर बॉडी के बाहर से बॉडी के बाहर ज्यादा हो रहा है, तो कंपनसेट करने के लिए वो बाहर निकलकर अंदर का प्रेशर जो कम करना चाहता है, तो ब्लड निकलने लगता है नाक पाक से, वो सब अपना माउंटेन सिकनेस। करना क्या होगा, वो कंडीशन ज्यादा सीवियर हो जाती है यदि आपने O2 और अफिनिटी, आपने मतलब आपकी सेल HB और O2 का अफिनिटी यदि आपने और इंक्रीज कर दिया ना, तो HB और O2 डिसोसिएट ही नहीं होगा। टिश्यू के पास पहुंच के भी क्लोराइड शिफ्ट हो रही है, लेकिन छोड़ ही नहीं रहा है, इतना ज्यादा एसोसिएशन हो गया, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, टिश्यू मर जाएगा, टिश्यू मर गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हायर एल्टीट्यूड पे तुरंत हमारी बॉडी क्या करने लगती है, O2 और HB का अफिनिटी डिक्रीज करने लगती है। O2 जहां चाहे वहां रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं, जैसे ही टिश्यू के पास पहुंचा, ले भैया तू ले ले, ले भैया तू ले ले, मतलब टिश्यू नहीं मरना चाहिए, to prevent it from hypoxia. अभी अपन ने देखा hypoxia, supply of oxygen to tissue, less supply of oxygen to tissue. तो HB और O2 की अफिनिटी कम होनी चाहिए at higher altitude, लेकिन सेम टाइम RBC का नंबर बढ़ना चाहिए, सेम टाइम RBC का नंबर बढ़ना चाहिए। RBC का नंबर क्यों बढ़ना चाहिए, वैसे ही कम मिल रही है, जितनी मिल रही है उतनी अकोमोडेट तो कर ले, जितनी मिल रही है उतनी अकोमोडेट कर ले, तो RBC का नंबर बढ़ा दिया, लेकिन जितनी मिली उतनी टिश्यू को तो दे दें, तो डिसोसिएशन बढ़ा दी, यानी अफिनिटी कम कर। यू ग्रैब द कंसेप्ट, यू ग्रैब द कंसेप्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आपने नोट करना चाहिए, माउंटेन सिकनेस और डिकम्प्रेशन सिकनेस, इस पर सवाल 100% आएगा। Excuse me, sir. यस एक्सक्यूज, बोलिए। Sir, can we say that the sannyasis living in Himalayas have more number of RBC in their blood? Yes, yes, yes. Why sannyasis are required? Kashmirians have more RBC than you, Vedant. Yes, sir. Thank you, sir. Excuse me, Agree? sir. Yes, excuse. Sir, this HB and O2 affinity decrease will happen because of Bohr's effect, na? Because more carbon dioxide is there in the tissues. HB and O2, repeat your question. So the body will cause decrease in HB and O2 affinity. This will happen because of Bohr's effect, because lot of CO2 is accumulated in the tissue, like more than normal. Perfect. If CO2 is increases, HB and O2 will dissociate. और यही तो हो रहा है. Since your breathing rate is high, definitely more CO2 is producing rather than intaking of oxygen. Gayatri. So means it is Bohr's effect only, but only it is sort of increased because carbon dioxide is accumulating in the tissue. At both the places, Bohr and Helden works, Gayatri. Let me very clear. If you increase breathing rate, if increases, then 101% you are producing more CO2 than intaking O2. Do you agree with this? Yes, sir. And if CO2 is increases, acidity is increases. Agree? Yes, sir. And if CO2 is increases, HB and O2 affinity is decreases. Agree? Yes, sir. And it must be. It must be. If not, then the case severe becomes severe. Gayatri. Agree? Please pardon that actually I had network issue. What I'm telling you, if breathing is more, Spandan, did you understand? Yes, sir. Ayush. Sir, can you repeat? I also had a network issue. Ayush, जोर से बोलो. Sir, can you repeat? I also had a Yes, I'm repeating. Just मुझे बताओ कि तुम लोग बैठे हो. कुंजल, विधि, उत्कर्षा, बैठे हो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Repeating my statement. If breathing rate increases, sir, yes or no बोलते जाना. If breathing rate increases, CO2 increases. Yes or no? Yes. Yes. If CO2 increases, HB and O2 dissociate. Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. Therefore, since CO2 increases, HbO2 dissociate. Therefore, O2 will be delivered to tissue and CO2 level drops down. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So, But if it does not takes place by any means and HbO2 are not dissociating at all, then the case will be severe. Yes or no? Yes, sir. yes, sir. Agree? Ayush, Yes, sir. Yes, sir. hi Spandan, bolo.
Sir, so in this case, the tissue which is more active will be affected more, na? Like Perfect. heart and brain. Perfect. Perfect. बिल्कुल सही पकड़ा. The tissue which will be more active will affect more. क्योंकि जो टिश्यू ज्यादा वर्क कर रहा है, ज्यादा फंक्शनल है, उसके पास CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. So that will be affect badly than the किसी सुस्त टिश्यू के कंपैरिजन में एक्टिव टिश्यू ज्यादा बैडली अफेक्टेड हो. बिल्कुल ठीक है सर. अंडरस्टूड. मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही कंसेप्ट पकड़ा. Excuse me, sir. हाँ बोलिए. Sir, I was talking. बोलो. Sir, I was talking that the diving suits, the diver which wear the diving suits, sir, those are used to decrease the pressure of the water on their body. यस यस यस. परफेक्ट परफेक्ट. बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो एयर का प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं और वो डाइविंग सूट उनको प्रोटेक्ट करते हैं. प्राप्ति ठीक का बेटा, बिल्कुल ठीक. Sir, it was Kunjal. अच्छा, ये तो कुंजल मंत्री. ओके फाइन. स्काई डाइवर वुड हैव आल्सो डिकम्प्रेशन सिकनेस ना. यस यस यस. डिकम्प्रेशन सिकनेस कहीं पर भी हो सकता है जहां पर एयर का प्रेशर एकदम से कम या ज्यादा हो रहा है. डॉक्टर्स अंडरस्टूड. Excuse me, sir. यस एक्सक्यूज्ड. Sir, how the people who climbs the Mount Everest try to compensate the mountain sickness? That's one, no. HbNO2 affinity should be what? Decrease. If it decreases, they will survive because no hypoxia will be there. Dr. Paitane, agree? Sir, yes, sir. Okay. Swaraj Nerkar, understood? Sir, Yes. so once the HbNO2 affinity will increase, then how it will suddenly decrease? Means what will actually happen? Again, repeat your question. Since once HbNO2 affinity increases, then how it gets suddenly decreased? How suddenly? मैंने बढ़ाया ही कहाँ अभी? मैंने बढ़ाया ही नहीं अभी. जैसे जैसे you will move to the higher altitude, gradually, as you are moving to the higher altitude, gradually Hb and O2 start dissociating. Doctor, understood? Yes, sir. Okay. चलिए, मैंने नीट के कंसेप्ट भी लिख दिए. And I hope that's all at my part from breathing. Excuse me, sir. Yes, excused. Sir, so we can say that the decrease in the affinity of Hb and O2 is what happens normally. But if there is not any decrease in the Hb and O2 affinity, then it is a like a disorder only. Like, it is exceptional case. Yes, Hb and O2 affinity must be decreases only when CO2 is increasing. In a normal course. In a normal course, it happens. It happens near the tissues and near the lungs. If you are increasing CO2 concentration near the tissue, Hb and O2 must be dissociated. Affinity lose near the tissue, Hb and O2 affinity must be lost. Gayatri, near the tissue and near the lungs, Hb and O2 affinity must be increases. Gayatri. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. गार्गी पाठक का सवाल आया. We are left with the respiratory capacities. Yes, perfect. मैं उसी पॉइंट पर आने वाला था. Respiratory capacities. Respiratory capacities are given on page number. गायत्री पाठक बिल्कुल ठीक बोला. Sorry, गार्गी पाठक बिल्कुल ठीक बोला आपने. गार्गी, am I audible? Yes, sir. Perfect. बेटा respiratory volumes और capacities मैंने क्यों छोड़ दी वो भी मैं बता रहा था आपको, क्योंकि ये खुद को समझना है थोड़ा सा. Tidal volume, volume of air inspired or expired during normal respiration. मैं जब normal inspiration और expiration कर रहा हूं तो कितनी air अंदर बाहर कर रहा हूं वो लिखा है 500 ml. Understood, अर्गी? Yes. तो एक मिनट में कितनी बार कर लूंगा मैं? एक बार में 500. तो मैं एक मिनट में कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करता हूं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया आपने. हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml
6000 से 8000 लीटर एयर, 6000 से 8000 ml, 6 से 8 लीटर एयर 1 मिनट में हम अंदर बाहर कर लेंगे। 1 मिनट में जितनी बार ब्रीदिंग हम लोग कर पा रहे होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दिया 500 से। कर गया, अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. The second one is inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume. Additional volume of air a person can inspire by forceful inspiration. भाई एक बार में मैं नॉर्मली जितना लेता था उसके बाद फोर्सफुल जो मैं ले रहा हूं वो मेरा क्या हो गया? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उतना मैं ले सकता था लेकिन ले नहीं रहा हूं। गार्गी, अंडरस्टूड? Yes, yes. भाई नॉर्मली मैं ले रहा हूं 500 के आसपास या 1 मिनट में 6 लीटर से 8 लीटर। अब मैं और कितना ले सकता हूं वो मेरा रिजर्व वॉल्यूम है। यदि मैं उसको डीप ब्रीथ करूंगा, आई कैन एक्स्ट्रा इनटेक। अग्री? Yes. और ये लगभग होता है 2.5 से 3 लीटर। लगभग 2.5 से 3 लीटर एक्स्ट्रा मैं ले सकता हूं, जो लेना चाहिए। इसीलिए योगाभ्यास में प्राणायाम करने की सलाह दी जाए, ताकि आप एक्स्ट्रा उस वॉल्यूम का इस्तेमाल करें। नहीं करोगे तो लंग्स को आदत पड़ जाएगी और वो उतना ही यूज कर पाए। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना मैं नॉर्मल निकालता हूं उसके बाद मैं फोर्सफुल यदि छोड़ूं तो वो भी मैं लगभग 1000 से 1100 ml निकाल सकता हूं। दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। रेसिडुअल वॉल्यूम, एक बार यानी फोर्सफुल मैंने निकाल दिया, उसके बाद भी यदि कुछ बच जाए, फोर्सफुल निकाल दिया उसके बाद भी कुछ बच जाए, तो दैट वॉल्यूम इज व्हाट? Residual. रेसिडुअल वॉल्यूम। और आप देखोगे जो बच गया वो और जो आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल रहे थे फोर्सफुली, उन दोनों का टोटल IRV के बराबर है। देखो जरा, बात को समझिए। एक वो जो मैं फोर्सफुल ले सकता हूं, सपोज मैं फोर्सफुल ले सकता हूं X अमाउंट, फोर्सफुल मैं ले सकता हूं X अमाउंट, फोर्सफुल मैं छोड़ रहा हूं Y अमाउंट, फिर भी जो बच जा रहा है वो Z अमाउंट, तो Y प्लस Z किसके बराबर होगा? नहीं समझे? अरे भाई मैंने फोर्सफुल ले लिया 3 लीटर, फोर्सफुल छोड़ दिया 1.5 लीटर, तो बच कितना गया? 500.5 बच गया। तो वो वही तो था जो मैंने फोर्सफुली लिया था। ग्रैब द पॉइंट। Yes, sir. ओके, उसके बाद है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या है? जितना भी टोटल मैं ले सकता हूं उन सबको मिला दिया तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? जितनी भी मैं छोड़ सकता हूं, नॉर्मल, फोर्सफुल, सबको जोड़ दिया तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब वो बचा हुआ वॉल्यूम, फोर्सफुल लेने के बाद बचा हुआ वो वॉल्यूम जो फंक्शनल है, जो काम में आता है, जो ब्लड में डिफ्यूज होता है, वो डेड नहीं, वो फंक्शनल है। जो रेसिडुअल वॉल्यूम था वो यूज नहीं कर रहा है, लेकिन फंक्शनल वॉल्यूम यूज कर रहा है। वाइटल कैपेसिटी सबको जोड़ दिया जाए, ब्रीदिंग को, टोटल लंग कैपेसिटी सारी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी को जोड़ दिया जाए, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। ये सर, हाँ बोलो। सर जो टेस्ट होगी 14 जुलाई को, उसमें अभी ये पूरा आएगा ना जो आपने अब तक पढ़ा है? यस यस, आज तक का पढ़ा हुआ सारा आएगा। मैंने सिलेबस भी शायद डाल दिया है, आपको नहीं डाला है? No, sir. जो इंचार्ज सर हैं साकेत सर, उनको डाल दिया है मैंने। मैं आपको बता दूं, डाइजेशन है, ब्रीदिंग है, लेट मी चेक, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंजाइम्स हैं, डाइजेशन और ब्रीदिंग। सेल ऑर्गेनेल्स, एंजाइम्स, डाइजेशन और ब्रीदिंग। So means बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ एंजाइम्स ही है ना? हाँ, सिर्फ एंजाइम्स। सेल ऑर्गेनेल्स, एंजाइम्स, डाइजेशन और ब्रीदिंग। इसीलिए बुधवार वेडनेसडे के पहले मैं आपका एक क्लास लगाऊंगा जो सबका डीसी क्लास होगा, चारों टॉपिक का डीसी होगा। आप जितना पूछ सकते हो पूछ लो, अदरवाइज सीधे एग्जाम। ओके फाइन, एनी मोर, एनी डाउट टू एनीवन?
Sir, can spirometer measure the residual volume? Pyrometer can measure the residual volume. No. Yes. Functional residual volume can be measured. Residual volume must be estimated. Okay. Okay, sir. Perfect. Any more doubt to anyone? Yes, sir. हाँ बोलो. Sir, how can coldness in mountains affect the mountain sickness? कोल्डनेस और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी ना. प्रेशर होता है ना कोल्डनेस का, वो ज्यादा प्रेशर, कंडेंसेशन ज्यादा क्रिएट करेगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, सिकनेस ज्यादा तेजी से बढ़ेगी. अंडरस्टूड? Sir, is migraine related to breathing disorders? Not exactly. Not exactly. Any more? Perfect. I hope सायन आपके भी जो क्वेश्चंस हैं और ज्यादा, क्योंकि अभी फिर दूसरा क्लास आ जाएगा, एक सेशन भी है अपना, उस सेशन के लिए आपको रेडी रहना है. I'll suggest you, whether you want to join or not, once you should listen properly what the representatives of RK Kalani are telling you. Listen carefully, and what I'll suggest you, convey your parents that we should finally close the admission, because एकदम से बच्चों कैप राउंड आएगा तो उसके बाद फिर मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, और फिर नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि फिर किसी नॉन टाई अप में लेना पड़े. That will be a big issue. So just try to understand and listen it carefully and finalize once you decide. Okay, see you at 7 with the session. All the best.